Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today's video is continuation of the chapter Human Eye. I have already shared two parts of the video with you, and in those videos we have already covered very important topics. We have covered topics such as the introduction of the human eye, what is the importance of human eye, what are the functions of various parts present in the eye, what are their role. Then we have also discussed in detail the working of the human eye. We have also discussed some terms such as persistence of vision, power of accommodation, range of vision and blind spot. I hope all of these topics have been clear to you. Now we'll continue with our next important topic, that is defects of vision. So please watch the video and subscribe to my channel, and if you watch the video and find it useful, please give it a like. Now let's start talking about the defects of vision. Basically, if the vision for a normal eye is not 6/6 and if you find difficulty in viewing either the nearby objects or the faraway objects, then we can say that there is some defect in our eyes. We can classify the defects of vision in two broad categories, which are myopia and hypermetropia. Now let's discuss the point of difference between these two type of defects. Okay, let's start with myopia. Myopia is the nearsightedness. Basically, if you have the defect myopia in your eyes, then you will be able to see the nearby objects clearly. You will have a good nearby sight. If we talk about hypermetropia, in hypermetropia, it is also known as farsightedness. That means the person suffering from hypermetropia will be able to see the faraway objects clearly. Okay. Now, obviously, if a person is able to see nearby objects and we are suffering that, and the person is still suffering from some kind of defect, then what will be the defect? The person will not be able to see the faraway objects. So we can conclude that if a person is suffering from myopia, the person will not be able to see the faraway objects or the distant objects clearly. The opposite will be applicable for hypermetropia. If we talk about hypermetropia, the person has farsight, which means he can see faraway objects, but that person will not be able to see the nearby objects clearly. Moving on to the next point of difference. यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को डिफरेंशिएट करते हैं. सेकेंड पॉइंट है दैट अगर मायोपिया की बात करें, इन मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. कॉन्सेप्ट क्या है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई का, कि जो आपकी इमेज होती है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना पे बनती है एंड देन वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट. But if you have the defect myopia in your eye, that means the image is not formed on the retina. In fact, the image is formed in front of the retina. Okay. If we talk about hypermetropia, in the case of the hypermetropia, the image is formed in back of the retina, that is behind the retina. मायोपिया में जो इमेज बनता है वो रेटिना के फ्रंट में बनता है. इसको हम क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं थ्रू अ रे डायग्राम. प्लीज सी द डायग्राम गिवन बिलो. लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट. आई लेंस पर आ रही हैं, आई लेंस अपना रोल प्ले करेगा एंड इन लाइट रेज को क्या करेगा बच्चों, कन्वर्ज. जब ये लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो आप देख रहे हो इनको मीट कहाँ पे करना चाहिए था, ऑन दी रेटिना, बट ये मिल कहाँ रही है सारी लाइट रेज एट अ पॉइंट बिफोर द रेटिना. सो इट इज मायोपिया. हाइपरमेट्रोपिया समझते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना एंड डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो आती हैं वो आई लेंस पे फॉल होकर कन्वर्ज तो होती है बट मीट करती हैं बिहाइंड द रेटिना. सो दैट इज वाई द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया is not able to see the nearby objects clearly. Okay. Now, moving on to the next difference. अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हमारी आइज में ऐसे डिफरेंट होता है कि हम मायोपिया से सफ़र करें या हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करें. टॉकिंग अबाउट द रीजंस बिहाइंड द डिजीज और बिहाइंड द डिफेक्ट मायोपिया, इट अराइजेस ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आईबॉल or due to the excessive curvature of cornea.
अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हम बोल सकते हैं that the person is suffering from myopia. आप डायग्राम में देख सकते हो आई बॉल एलोंगेटेड दिख रही है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, बट इस केस में एलोंगेटेड आई बॉल है, राइट. मूविंग ऑन टू दी हाइपरमेट्रोपिया. कॉजेज क्या होते हैं इसमें? इट अराइजेज ड्यू टू दी ईदर आई बॉल गेटिंग शॉर्टेंड और द सेकेंड रीजन कुड बी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज बिकम टू लार्ज. दोनों ही केस में हम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से सफ़र करते हैं. डायग्राम से आप देख सकते हो आई बॉल शॉर्टेंड विजिबल है इस डायग्राम में. ओके जी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट, कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. ठीक है जी. अगर मायोपिया की बात करें, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस. अगर आप चाहते हो मायोपिया करेक्ट हो जाए, आपको क्लियर 6/6 दिखाई दे, जिसके लिए हम लेंसेज भी यूज़ करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं. तो मायोपिया में जो हमारे स्पेक्स के अंदर लेंसेज होते हैं, दोज आर कॉन्केव लेंस, राइट. नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया की बात करें. हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम ऑलरेडी लाइट चैप्टर में डिटेल में कर चुके हैं. आई होप दोज आर क्लियर टू यू. मूविंग ऑन, मायोपिया में आप देखिए डायग्राम. लाइट रेज आ रही हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से. पहले आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में जब वो आई लेंस से पास हो रही थी तो कन्वर्ज होके रेटिना से पहले मीट कर रही थी. बट सेकेंड डायग्राम में जब हमने करेक्टिव लेंस यूज़ किया विच इज़ योर कॉन्केव लेंस, सो वही लाइट रेज कन्वर्ज होके कहाँ मीट कर रही हैं, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना. सो दैट इज़ द रोल ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर करेक्टिंग द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. ठीक है जी. चलो हाइपरमेट्रोपिया की बात करें बच्चों, तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, डायग्राम में देखते हैं कैसे इससे करेक्शन होता है. फर्स्ट डायग्राम में देखिए आई लेंस कन्वर्ज करके लाइट रेज को बिहाइंड द रेटिना फॉर्म करा रहा था, बट जब हमने इसमें कॉन्वेक्स लेंस एज करेक्टिव लेंस यूज़ किया, सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इन दैट केस. सो दैट मीन्स hypermetropia can be corrected using a convex lens. Okay ji. So with this we have covered all the points of difference between hypermetropia and myopia. These are the two defects of eye from which the humans suffer if their eyesight is not normal vision. Okay ji. Chalo. Moving on to our next topic, cataract. बच्चों कैटरैक्ट क्या है, एक स्पेशल टर्म है जो एक डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए यूज होता है. व्हाट हैपन्स इन द कैटरैक्ट? इफ़ वी टॉक अबाउट ओल्ड एज, जनरली जैसे एक पर्सन की एज इंक्रीज होती रहती है, जो उसका आई लेंस है वो ब्लर होने लगता है. ठीक है जी. सो उसको क्लियर दिखना बंद हो जाता है. ऐसा नहीं है कि उसको मायोपिया हुआ है या हाइपरमेट्रोपिया हुआ है. नियर या फार साइटेडनेस से रिलेटेड नहीं होता है बच्चों. इसमें जस्ट आपका जो आई लेंस है उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होने लगती है, एक मेम्ब्रेन डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से आपका आई लेंस हेजी या फिर क्लाउडी हो जाता है. सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन योर विजन. ओके. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट डायग्राम जिसमें आपकी नॉर्मल आई लेंस है जिसमें कैटरैक्ट नहीं है, एंड सेकेंड जिसके अंदर आपके लेंस के ऊपर एक लेयर डिपॉजिटेड है. आप देख सकते हो वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर एक तरह का है. ठीक है. इसी को हम कैटरैक्ट बोलते हैं. व्हाई डज कैटरैक्ट हैपन? अ कैटरैक्ट बिगिंस व्हेन प्रोटीन्स इन द आई form lumps that prevents the lens from sending clear images to the retina. बेसिकली आपकी प्रोटीन लम्प्स की फॉर्म में आई लेंस पे डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका विजन ब्लर हो जाता है. ठीक है जी. अगेन आप इमेज देख सकते हो आई विद कैटरैक्ट. आपको दिख रहा है एक ब्लर इमेज है ना, जो लेंस है उसके ऊपर एक ब्लरी टेक्सचर आ रहा है. ठीक है. वाइटिश कलर का ब्लरी टेक्सचर आ रहा है. सो दैट इज अ पर्सन विद अ कैटरैक्ट आई. क्लियर. इसको करेक्ट कैसे करते हैं बच्चों? इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसको थ्रू सर्जरी ट्रीट करना होता है. ओके जी. चलो, विद दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर कवर्ड. नाउ आवर लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज visually challenged person. In this topic we are going to cover how does visually challenged person deals
with the problems in their lives. Why does a person become visually challenged? What could be the reason? What type of people are included in this category? And what help can be provided to them so that they can lead a normal life? Let's start. Visually challenged person can come into two categories. One with the limited vision and second with the complete loss of vision. If a person has limited vision, we can say that the person is partially blind. And if a person has complete loss of vision, we can say that the person is completely blind. Clear? Now, what could be the possible reasons behind their vision problems? It could be vitamin A deficiency. You have already studied till this class many times that if there is a deficiency of vitamin A in our diet, then the person may suffer from night blindness, which is a type of defect only, okay? Next, it could be any illness, any disease, the side effect of any disease such as diabetes, glaucoma, or even cataract. Next reason could be genetic or inherited problems. Maybe the person's parents or grandparents or maternal parents are blind, or they have some defect, or they are partially blind. So maybe the defect of vision is genetically transferred to the person, right? Last but not the least, it may be due to some kind of accident. It is possible that the person is blind by birth also, or he may have developed that defect, or he maybe have become visually challenged in the time being of his life, okay? Chalo, next, how can we help visually challenged person? Now that is the main thing, that okay, if a person is visually challenged, what can be done to help them? See, most visually challenged person have a better sense of touch, smell or hearing than the normal people. If their eyesight or eye sense is not working properly, the other senses could be utilized so that they can lead a normal life, right? अब देखते हैं वो क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं उनके अदर सेंसेस को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं एड्स या फिर रिसोर्सेज विच कैन बी used by the visually challenged person or could be provided to them so that they can be able to learn and survive like others, okay? The aids or resources for visually challenged persons can further be categorized into two parts: optical aids and non-optical aids. Now we'll discuss both of them one by one. Talking about the optical aids. Optical aids can be further classified into two types: lenses and telescopic aids. ऑप्टिकल एड्स बच्चों बेसिकली ऐसे सोर्सेज हैं या ऐसे हेल्प है जिसमें हम आई साइट को ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उनके विजन में ही कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेंसेज हो गए, अगर किसी को मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एक्सट्रीम लेवल पे बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता, बहुत ही बिल्कुल मिनिमम विजन है, तो उस केस में हम लेंसेज यूज कर सकते हैं फॉर करेक्टिंग, है ना। देन टेलीस्कोपिक एड्स की बात करें, दीज आर यूज टू व्यू क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ब्लैक बोर्ड्स सो दैट a visually challenged person can also study in a normal classroom, which is known as inclusive education, as you all know, okay? Chalo, next, non-optical aids. Non-optical aids can be further categorized into two types: tactual aids and auditory aids. इनको समझते हैं. If we talk about tactual aids, in tactual aids, the sense of touch of a visually challenged person is utilized to help them lead in a normal एनवायरमेंट, ओके। बेसिकली इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विच इज़ अ ब्रेल सिस्टम, उसको समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स आप नाम से ही कनेक्ट कर सकते हो। इट यूटिलाइजेज द सेंस ऑफ हियरिंग ऑफ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। बेसिकली सुनने की जो उनकी क्षमता है उसको यूज करके हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिटरी एड्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों? ऑडियो कैसेट्स, रिकॉर्डर्स, टेप्स, ऑडियो सीडीज, ऑडियो बुक्स, या फिर इवन हम टेक्स्ट फाइल्स को साउंड में ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रांसलेटर एंड देन बच्चे उसको सुन के अपना स्टडी कर सकते हैं, राइट। ऑडिटरी एड्स क्लियर होगा आई होप। लास्ट द टैक्चुअल एड्स एक बार देखते हैं। टैक्चुअल एड्स जैसे कि अभी बताया, जिसमें हम सेंस ऑफ टच को यूटिलाइज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रेल सिस्टम। The visually impaired can learn to read and write by using a special touch system called Braille system. अब ये Braille system क्या होता है समझते हैं।
आप देखो साइड में इमेज में देख सकते हो एक पैटर्न बना हुआ है एक शीट के ऊपर, यही आपका ब्रेल सिस्टम होता है। क्या होता है इस पैटर्न में वो समझेंगे। फर्स्टली ब्रेल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल who himself was a visually challenged person. What is Braille system? It is a coded language based on a logical system. ये भी देखेंगे अभी हम कैसे होता है। There are Braille codes for common languages as well as scientific and mathematical notations. Basically हमने कोड्स बना दिया, जैसे 0 to 9 नंबर्स के लिए कोड बना दिए हैं स्पेशल, कि इस कोड 0 के लिए ये कोड है, 1 के लिए ये कोड है, और वो उसको टच करके एक विजुअली चैलेंज पर्सन बता सकता है दैट दिस इज 0, दिस इज 1। सिमिलरली A to Z अल्फ़ाबेट्स के लिए, कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस के लिए, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस के लिए ये कोड्स बनाए गए हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Braille codes. What is Braille code? In this system, raised dots are used as a pattern. Basically 0 के लिए हम कुछ डॉट्स का पैटर्न बनाएंगे, 1 के लिए वो डिफरेंट होगा, 2 के लिए डिफरेंट होगा। इसके अंदर 6 डॉट्स का एक पैटर्न होता है, 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर डॉट को रेज करके या एक से ज़्यादा डॉट को रेज करके एक पैटर्न बनाते हैं। इट हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। इसी तरह से हमने टोटल 63 सिम्बल्स या 63 पैटर्न्स बना रखे हैं, ठीक है जी। नाउ दीज पैटर्न्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। वो पर्सन उस पैटर्न को टच करता है, उस पर अपनी फिंगर रखता है एंड वो एकदम से लिंक कर लेता है दैट दिस इज अ पैटर्न ऑफ 0 और दिस इज अ पैटर्न ऑफ अल्फा और दिस इज अ पैटर्न ऑफ स्टार। The dots are raised slightly so that they can be easily touched. अब ऑब्वियसली वो पर्सन डॉट्स को देख तो नहीं सकता, तो वो डॉट्स को फील कैसे करेगा? वो पेपर पे हल्का सा हम क्या करते हैं, उनको राइज अप करके शो करते हैं सो दैट द पर्सन कैन फील द डॉट्स एंड देन टेल व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न और व्हाट काइंड ऑफ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड। ओके जी, चलो इसको एक बार टेबल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप जैसे ए का पैटर्न दिया हुआ है, ए में आप देखो 6 डॉट्स है जिसमें से फर्स्ट वाला रेस्ड है, बी में फर्स्ट 2 रेस्ड है, डी में सी में हॉरिजॉन्टली 2 रेस्ड है, डी में 2 हॉरिजॉन्टल एंड देन राइट में वर्टिकल वाला रेस्ड है। सो इस तरह से आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को एंड सिंबल्स को बच्चे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स। आई होप ब्रेल सिस्टम आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसमें पर्टिकुलरली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड देन कैटरैक्ट। उसके बाद हमने विजुअली चैलेंज पर्सन का टॉपिक डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं यूजिंग ऑप्टिकल एड्स एज वेल एज नॉन ऑप्टिकल एड्स। सो प्लीज़ complete this video. This was the last part of the chapter Human Eye. If you face problem in any part of the chapter, please let me know in the comment section. Thank you.